Assalamu alaikum aspirants. PIRA has recently announced the result of the first phase, and the second phase, which comprises GK and English essay paper, is going to take place on 21st of this month. So it is actually a very short time. All the aspirants, they are caught off guard and actually unprepared. In this session, I will walk you through this, and we will try to figure out what can we do in this 1 week, and how we are going to ace this exam, keeping in mind the scarcity of time. You know me, I am Rizwan Bosan, and for the last 4 years I am teaching in a model college in Islamabad. It's a Federal Public Service Commission job I got in 2022, and recently I have also passed an assistant director job in Pakistan Senate in writing directorate, and I have passed the GK paper as well as the English essay, the descriptive paper. Uh, Moving forward, let's talk about these two exams, the two most exams that you are going to face in the near future. Sub-divisional enforcement officer, it is going to be 100 mark, 2 hour long essay. Same goes for assistant election commissioner. The exam has taken place, and most likely the result will be out in 3-4 weeks. So it is not far away as well. So these are the paper, especially keeping in mind the SDEO paper, because we are almost out of time. We have only a week left. करना क्या है सबसे पहले, actually my audience is going to be these two candidates of these two jobs, but it is in general as well for the future. They both are 100 marks paper. So you will have 100 marks, you will have 2 hours, and you are supposed to write an essay, and good thing is you will have choice. Okay, essay है और आप के पास चॉइसेस भी होंगी. हाँ, अगर मैं भी आपकी जगह पर होता तो परेशान होता कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम हमें 1 महीना तो मिलेगा, और वो नहीं मिला. और इसका कुछ लोगों को नुकसान हुआ होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा. फ़ायदा किनको हुआ होगा? देयर आर कैंडिडेट्स हू आर गुड रीडर्स. दे स्टडी डॉन न्यूज़पेपर डेली. 20-25 रुपए का आता है घर में, अगर आप भी लगवा लें. दे स्टडी एटलीस्ट जहांगीर टाइम मैगजीन. These are two actually good resources if you are trying to land into different jobs, or you are already in a good government job and you want to level yourself up, you want to land in a better job. You should have these two things: Jahangir World Time magazine, a monthly magazine, and actually I have it, it's lying there. This is the magazine, Jahangir World Time magazine. This is the latest magazine, this month's magazine. So what is important, that you read Dawn newspaper and you read this magazine at least, because if you are reading it, you will have enough vocabulary as well. You understand the latest national, international developments as well. You have good sense of what is happening in Pakistan and across the world. So they expect a good candidate to be aware of this. So you got to be a very good reader as well. If you were a good reader, if you had the opportunity to read Dawn, the News, the Nation, Express, Tribune, or these magazines, तो आप आज बहुत इजी होते. और अभी भी आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ डेविलिश गॉड डैम एग्ज़ाम जिसकी किसी को कुछ समझ नहीं आती. इट इज़ एन इंग्लिश एसे एग्ज़ाम. मतलब ये कि एक पेपर है और इंग्लिश ऐसे का पेपर है. उसमें करना क्या है? दे वांट टू असर्टेन, दे वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन अ टॉपिक. उसको आपने क्लैरिटी के साथ, रेलेवेंस के साथ, स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए आपने एक ऐसे लिखना है. ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं होती. इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमने इसको कैसे लेके चलना है. तो ये चीज़ें तो क्लियर हुई, ठीक है. यू विल हैव चॉइसेस. आपके पास शायद 4-5 चॉइसेस हों इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, ये जो है ना SDO की जो जॉब है,
और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपको 10 जैसे CSS में होता है उसमें होता है। अच्छा, अब सबसे पहले ये कि हमारे पास जो टाइम बचा है इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे पहले बताया, सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना, कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। मसला ये है कि हम इंग्लिश लिखते नहीं हैं, वी आर नॉट गुड राइटर्स। रीडर्स तो हैं ही नहीं, वो तो हमें पता है, वी आर नॉट गुड रीडर्स, वी आर नॉट गुड राइटर्स। वो एक चीज़ होती है, उसके लिए एक फोबिया होता है, फोबिया ऑफ राइटिंग, उसके लिए आसाम से एक स्क्रिप्टोफोबिया। स्क्रिप्टोफोबिया इज़ फियर ऑफ राइटिंग, वी डोंट राइट। हम कहते हैं यार मैं कैसे लिखूंगा, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है यार, मेरे तो ओपिनियन कोई है ही नहीं, मेरी तो इंग्लिश ही ख़राब है, वट एवर। दीज आर फियर्स। जैसे एक और फियर होता है स्टेज फ्राइट, स्टेज पे गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ग्लासोफोबिया उसे कहते हैं। ग्लासोफोबिया हो गया, स्क्रिप्टोफोबिया हो गया, दीज आर फोबियाज। होती हैं ये चीज़ें, लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो आप बड़ा अच्छा फ़ील करेंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज़ होती नहीं। तो हमने इन फ़ोबियाज़ को ज़रा साइड पे रखना है। ये जो हमारे पास 1 आध हफ़्ता है, हमने क्या करना है, दैट यू आर अ स्टूडेंट, अ कैपेबल स्टूडेंट जिसने पहला फ़ेज़ पास कर लिया है, और आप इंग्लिश भी कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई मिसाल के तौर पे आपके लिए कोई पहली बार आप उसको देख रहे हैं, आपने कोई 8-10 साल, 15 साल आपने इंग्लिश भी पढ़ी होगी। इंग्लिश मीडियम से नहीं है, उर्दू मीडियम से होंगे, तो फिर भी आपने इंग्लिश इतनी तो पढ़ी है कि आपकी बेसिक इंग्लिश इतनी है कि आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, और उसमें ग्रामेटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक शेक्सपियर, दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट इन सच फ्लॉलेस इंग्लिश कि जैसे कोई चैट जीपीटी ने लिखा है और उसमें कोई एक ग्रामर की गलती नहीं है। दे डोंट एक्सपेक्ट यू। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम मैंने पास किया, पूरे पाकिस्तान में टॉप किया, तो क्या मैं गलतियां नहीं करता? मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूं, तो क्या मैं गलतियां नहीं कर सकता? कर सकते हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ, अगर कोई बड़ा कोई टॉप का यूनिवर्सिटी को कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर भी अगर गलती कर सकता है ना ग्रामर की, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये लीवे आपको वो देते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत कोई सख्त क्राइटेरिया होता है। बाकी क्या चीज़ है, सिंपल इंग्लिश है। सिंपल इंग्लिश में आपने अपनी ओपिनियन लिखनी है, उसको कैसे लिखना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले कोई 8-10 टॉपिक्स हैं और थीम्स हैं ना, हम उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि हमने लिखना तो है लेकिन वी ऑल्सो नीड सम कंटेंट। मैंने जैसे बात की, अगर आपने वर्ल्ड टाइम का मैगजीन पढ़ा हुआ होता, इसमें जो है एक आर्टिकल है हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड रेमेडीज। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये सेम टू सेम इसी किस्म का मेरे ख्याल में ऐसे आपका पीरा की जॉब में भी आ सकता है। ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का भी ये टॉपिक हो सकता है। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपके पास आइडिया तो है, आपने तो बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक ऐसे पहले ही पढ़ लिया है, तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होती। अब चूंकि आप अगर रीड नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट अ रेगुलर रीडर, तो फिर आपको कंटेंट भी इकट्ठा करना पड़ेगा। आपके ऐसे में थोड़ी डेप्थ भी होनी चाहिए, कोई बात भी होनी चाहिए, सिर्फ एवं ही नहीं लफ नशर ना हो, तो उसमें कोई बात भी हो। तो आपने इसीलिए क्या करना है, टॉपिक्स क्या हो सकते हैं आपके इन इन चीज़ों को, ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें कुछ तो बड़े ही बेसिक से हैं। मिसाल के तौर पे वीमेन एम्पावरमेंट, एवरग्रीन टॉपिक, अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में ये आ सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको देखना होगा। इसके अलावा क्या है, जनरल जो टॉपिक्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज, आप इसको थोड़ा सा, चूंकि मैंने CSS का पेपर भी दिया हुआ है, पास किया है, रिटर्न मेरा पास है, PMS भी मैंने देखी है, बाकी भी मैंने कुछ एग्जाम्स देखे हैं। अब जितने पाकिस्तान में आ रहे हैं ना एसेज, वो पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई यूक्रेन रशिया वार के ऊपर कोई पूछ लें, या कोई और इस किस्म का टॉपिक है वो पूछ लें, या ये रशिया इसकी चाइना की और USA की वो जो ट्रेड वार चल रही है, ऐसे टॉपिक्स कम आते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं वो रीजनल हैं या वो लोकल हैं, वो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान की अपनी चीज़ें हैं। तो क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, सिर्फ क्लाइमेट चेंज ना करें, हाउ इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग पाकिस्तान, इस किस्म के थीम को माइंड में रख के करें कि पाकिस्तान $5 बिलियन की इनसे लेता है इमदाद 5 सालों में IMF से,
और एक सैलाब हर 2 साल बाद आता है और हर साल हमारा 10, 12, 15 बिलियन डॉलर का वो नुकसान करके चला जाता है। तो ये क्लाइमेट चेंज इट्स अ बिग मैनेस, अ बिग थ्रेट। तो क्लाइमेट चेंज का है, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, इसी में चेंजिंग वेदर पैटर्न्स भी हैं, इसी में और किस्म के एक्सट्रीम वेदर्स है, तो ये भी इसी में आ गया। इसके अलावा क्या है आपने डिस्कस करना है, मिसाल के तौर पे करप्शन, अ बिग मैनेस, टू नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे एजुकेशन का है। एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये मैं खुद इनकी स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, आपने इसको देख लेना है। थीम यही होगा, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, या चैलेंजेस एंड रेमेडीज कर लेते हैं। इसी से मिलता जुलता आप एजुकेशन के साथ हेल्थ को भी कर लें, हेल्थ केयर सेक्टर इन पाकिस्तान, उसमें भी चैलेंजेस एंड रेमेडीज कर लें। इसके अलावा जो है गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं है, बाकी जो बंदे हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी नाअहल हैं, वो भी काम नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, तो सऊदी अरेबिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है, सख्त किस्म की बादशाहत है, लेकिन वहाँ गवर्नेंस क्राइसिस नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं जिनके जिम्मे काम लगे तो वो काम करते हैं। गवर्नेंस क्राइसिस, बल्कि नहीं, क्राइसिस, SIS इन पाकिस्तान। जो SIS है वो सिंगुलर होता है, क्राइसिस कोई एक मसला होगा तो क्राइसिस, अगर CRISES होगा तो वो बहुत से मसाइल प्रॉब्लम्स के वो उसमें आएगा। गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में गवर्नेंस को लेके जो मसाइल हैं वो, अच्छा अगर आपने पीरा के एग्ज़ाम को माइंड में रखना ना, मेरे माइंड में कुछ और चीज़ें हैं। जैसे अभी हमें पीरा ने सरप्राइज़ किया है इतनी जल्दी वो पेपर अनाउंस करके, और भी सरप्राइज़ हो सकता है कि वो जो बड़े कॉमन से टॉपिक्स हैं उनसे हट के भी वो कुछ पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अर्बनाइजेशन पे पूछ सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। CSS में अलग ये पूरा पेपर है। तो अर्बनाइजेशन एंड इंक्रोचमेंट, इस तरीके से कर लें। या इस तरीके से हो सकता है कि इंक्रोचमेंट, द इशू ऑफ इंक्रोचमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। अब वो इसकी इंक्रोचमेंट और अर्बनाइजेशन का, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं वो उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, जिसे कहते हैं ना टाउन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, वो यहाँ नहीं होती। वी हैव लॉन्ग हैपहैज़र्ड स्ट्रक्चर्स जिसको हम सिटीज़ कह लेते हैं, और उनमें कोई जो है ना ऑर्गेनाइज तरीके से सिटी जो है वो नहीं बने। इस्लामाबाद था किसी ज़माने में एक ऑर्गेनाइज सिटी, लेकिन अब वो भी ऑर्गेनाइज नहीं रहा। इसी तरीके से हैपहैज़र्ड जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जिसकी वजह से जो शहर हैं वो जहाँ जिसका दिल करता है मकान बना देता है, जहाँ जिसका दिल करता है कॉलोनी बना देता है। और एक जो है ना वो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मसला है। और डॉक्टर महबूबुल हक जो है, उनका एक इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, तरक्की क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सारी की सारी डेवलपमेंट पाकिस्तान में ये है कि ये सड़क तोड़ दो, ये बना दो, ये तोड़ दो। हमारी आबादी इतनी है और हमारी टाउन मैनेजमेंट और टाउन प्लानिंग ही नहीं है, अर्बनाइजेशन हमने सही तरीके से की नहीं है, तो फिर कैसे होगा? हमने कोई जगह तो बनाई नहीं पार्किंग की, किसी भी तरह की, कोई बंदा गाड़ी फिर कहाँ पार्क करेगा? तो ये मसले हैं। तो इस टॉपिक को, क्योंकि ये पीरा के उससे बड़ा मिलता जुलता है, तो मेरे माइंड में है इस किस्म की कोई चीज़ वो पूछ सकता है। तो आपने थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर लेना है कि ये चीज़ें क्या हैं, इसके मुतल्लिक़ कोई थ्योरीज हैं या कोई मॉडल्स हैं
जैसे किसी ज़माने में इस्लामाबाद का होता था, शायद अब भी आप कोट कर लें, ये बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का शहर होता था, खसूसन जी जो मेन सेक्टर्स थे। इसी तरीके से और भी दुनिया के बहुत से शहर थे वो इस स्ट्रक्चर के तहत जो हैं वो बने। अर्बनाइजेशन एंड इंक्रोचमेंट इन पाकिस्तान इस किस्म का एक टॉपिक हो सकता है। और और क्या हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट्स का भी आ सकता है, रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये हमारी वो हो गई। तो अच्छा, इसमें शायद हो सकता है कि और भी इससे मिलते जुलते जो है ना वो कोई टॉपिक्स आ जाएं। करप्शन हमने लिखा है, करप्शन हो गया, ठीक है, करप्शन एक मेन इशू है। हाँ, कुछ और भी आप एक दो लिख दें। मेरे ख्याल में जैसे ये एआई का दौर है, तो शायद एआई से रिलेटेड फ्यूचर ऑफ एआई, इज एआई गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमंस, इस किस्म का कोई टॉपिक भी आ सकता है। फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, इस चीज़ की तो डिजिटल जो है ना टूल्स जो होते हैं उससे रिलेटेड भी ना ये एक टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा है। इसको किस तरीके से पुट करें। डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड एंड टूल्स, ये एक थीम है मेरे माइंड में है। इस किस्म की कोई चीज़ पूछी जा सकती है। जैसे एजुकेशन जो है वो बहुत सारी ऑनलाइन हो चुकी है, ऐप्स हैं उसके थ्रू जो हैं वो आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस, मेरे ख्याल में ऐप भी है, मरीम जो है ना वो नवाज साहिबा का, उन्होंने वो लॉन्च आई थिंक किया है। तो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है। जो उसका था जो डॉक्टर्स हैं वो जो मशवरा देते हैं फ़ोन पे बैठ के, उसके लिए एक ऐसा ही टर्म यूज़ होती है। तो ये चीज़ है, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये टूल्स से मिलती जुलती हैं। इस किस्म की भी एक हो सकती है कि हाउ दीज डिजिटल टूल्स आर शेपिंग द वर्ल्ड मे बी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी जो आपके इंटरेस्ट से रिलेट करते हैं, कोई 5 7 4 5 कुछ भी, उन टॉपिक को स्टडी करना है, आपने एक्सप्लोर करना है। 2-3 जो टॉप के आर्टिकल्स आए उनको ज़रा देखना है, क्या आया है, बात क्या हो रही है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, आर्गुमेंट्स क्या हैं, इसमें कोई अगर आ जाएँ, कोई रेफरेंसेस आ जाएँ अच्छे, तो आपने वो देने हैं। इकॉनमी की जो है ना वो मैं वो लाज़मी लिखूँ। यानी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो आप ज़रा चैट जीपीटी से भी पूछें। हमारे दोस्त कहते हैं हज़रत चैट जीपीटी, तो आप इससे भी ज़रा पूछें कि भाई मुझे गाइड करो कि पाकिस्तान के जो है ना इकोनॉमिक चैलेंजेस वो कौन कौन से हैं। एंड देन यू गो टू डॉन एज वेल। डॉन से मुराद आपने गूगल पे सर्च करना है इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, तो जो टॉप पे 2-3 आर्टिकल्स आएंगे आपने उनको रीड करना है, आपने कंटेंट नोट करना है। आपके पास जब डाटा नहीं होगा ना तो आप कुछ नहीं लिख के आएंगे, आपके पास डाटा होगा तो आइडियाज़ भी आते हैं, आपने फिर उनको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो ये जो आपके पास बकाया दिन है ना, इसमें आपने क्या काम करना है, यू हैव टू कलेक्ट डाटा फॉर योर एसे। डाटा नहीं होगा ना तो आपका जो एसे होता है वो होता है फ्लफ, बातें ही बातें, उसमें कोई काम की बात तो है नहीं, कोई रिसर्च तो है नहीं। रिसर्च पेपर नहीं लिखना होता, लेकिन उसमें कोई बात तो हो ना। आपने अगर कोई बात की है तो आपने अपनी बात को बैक करना है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये बड़ी अहम बात है। यही बात डॉक्टर इशरत हुसैन जो है वो गवर्निंग दी अनगवर्नेबल में कर रहा है, यही बात जो है वो फलां बंदा फलां किताब में कर रहा है, यही बात जो है वो वाई नेशंस फेल में डेरन एस मोगली और जेम्स रॉबिन्सन कर रहा है। तो इस तरीके से जब आप रेफरेंसेस देते हैं तो आप अपने केस को मजबूत कर रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ यू राइट अ गुड एसे। ठीक है, अ गुड एसे। तो उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए होता है, उसके लिए आपको मवाद चाहिए होता है, उसमें है क्या,
तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको जरा माइंड में रख लें। कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि हमारे पास चॉइस होगी तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये एवरग्रीन किस्म के टॉपिक्स होते हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ये मैं अब रेज कर रहा हूं। अच्छा, एक छोटी सी और चीज कि ये जो मैंने कोई एक दो महीने पहले भी एक ऐसे के ऊपर ना एक इंट्रोडक्शन के ऊपर एक रिकॉर्ड करवाया था लेक्चर, उसमें ये बात मैंने डिस्कस की थी, इसको रिवाइज कर देते हैं। व्हाट डज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। मैंने सीएसएस का पेपर भी दिया है, पीएमएस का भी, और बाकी भी जो पेपर्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि मार्क्स इन तीन चीज़ों की बेस पे दिए जाएंगे। यानी व्हाट आर द बेंच मार्क्स टू स्कोर हाई इन एसे, तो वो तीन चीजें हैं। एक होती है रेलेवेंस, आपने जो लिखा है वो रेलेवेंट है। बात आपसे विमेन इंपावरमेंट की हुई है तो आपने विमेन इंपावरमेंट के ऊपर लिखा है। बात आपसे हुई है ना हेल्थ सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की जो है ना बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं, आपने जो है पाकिस्तान में वो एक बात की कि जी करप्शन एक वजह है और उसके बाद सारी बात ही आगे करप्शन की चल रही है, वो रेलेवेंट नहीं है। बात हो रही है मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एजुकेशन की, तो आप उसमें से बात निकलते निकलते उसमें से आपने इमरान खान बरामद कर दिया, या उसमें से आपने कोई एक किसी अदारे को बरामद कर दिए, तो ये इरेलीवेंट हो जाएगा, ये रेलेवेंट नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है। रेलेवेंस। इसके अलावा और एक चीज होती है क्लैरिटी, आपको टू द पॉइंट बात करनी होती है और आपको क्लियरली बताना होता है कि इससे मुराद मेरी ये है। मिसाल के तौर पे अगर कोई है ना कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, तो फिर आपने से ये इन दो चीज़ों की बात करनी है। फिर आपने कोई बड़े बैकग्राउंड नहीं बताने, फिर आपने जो है ना कोई किसी किस्म के इम्पैक्ट नहीं बताने, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं बताने। उनको कॉन्सिक्वेंसेज पता है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जो है ना बैड गवर्नेंस, या व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर एजुकेशन, तो वो और चीज़ है। इश्यूज एंड रेमेडी ये और चीज है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए, और तीसरी चीज जो है वो आपकी होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये कि जैसे ह्यूमंस हैं, वी हैव अ हेड, बॉडी है, वी हैव लेग्स, ऐसे ही ऐसे की भी इसी तरीके से एक बॉडी होती है। इट हैज़ एन इंट्रोडक्शन, इट हैज़ बॉडी पैराग्राफ्स एंड इट हैज़ कंक्लूजन, उसी किस्म की। तो आपने इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। मैंने कहा है कि सी एस एस पी एम एस के एस के टॉपिक के ऊपर, एस के ऊपर वो जो क्वेश्चन पेपर है लिखा होता है कि मार्क्स जो है इन तीन चीज़ों की बेस पे देंगे, और ये जो एग्जाम्स होंगे इनमें भी मार्क्स इन तीन चीज़ों की बेस पे होंगे। क्या आपने रेलेवेंट लिखा, क्लैरिटी थी, स्ट्रक्चर ठीक था, ठीक है। ये क्लैरिटी में ना वो आपकी कोहेजन, कोहेरेंस, आपकी ग्रामर, ये बेसिक चीजें भी वैसे आ जाती हैं। स्ट्रक्चर आपका कैसा था, आपने इंट्रोडक्शन लिखा या नहीं लिखा, आउटलाइन आपने बनाई या नहीं बनाई, बॉडी पैराग्राफ आपने लिखे या नहीं लिखे, बॉडी पैराग्राफ ठीक है या गलत है। यानी आपका हर जो आपका नया पैराग्राफ है उसका पहला सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस होगा आपका, उसमें एक जो है ना उसके दरमियान में आपने जो डिटेल्स होंगी, सपोर्टिव डिटेल्स आपने वो देनी है। ये चीज़ें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा है, ये स्ट्रक्चर में आएगा। अच्छा, अब चूंकि वी हैव शॉर्ट टाइम इस लेक्चर में, तो हम वो कोई डिटेल में तो जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, क्लैरिटी, रेलेवेंस, ये आपको समझ है, बेसिक चीज़ें हैं। मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको इनका पता होगा। अब हमने क्या करना है, हम ज़रा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम इसको, ये जो पीरा का और इलेक्शन कमीशन का पेपर है, इसको माइंड में रखते हुए करते हैं कि हमारे पास है एक एसे,
एक ऐसे है 1400 टू 1500 वर्ड्स का, ठीक है, और हमारे पास 2 घंटे हैं। तो हमने क्या करना है, वी विल ट्राई कि हम एक आउटलाइन बनाएं और आउटलाइन के बाद एक इंट्रोडक्शन हो हमारे ऐसे का, जो कि 120 टू 140 150 इतने वर्ड्स का हो। फिर हमारे बॉडी पैराग्राफ्स हों, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2, बॉडी पैरा 3, बॉडी पैरा 4, सो ऑन, और एंड पे आपने लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, ये आपके एस्से की ये 3 मेन चीजें होंगी, 4 एक्चुअली, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपने जो है ना, ये आपने लिख देना है इसको कोई 100 वर्ड्स के अराउंड, ठीक है। और आपका बॉडी पैराग्राफ जो होता है ना, इट हैज टू बी अराउंड समवेयर अराउंड 80 90 100 110 120। मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा कि 80 टू 120, इससे बड़ा मैं नहीं सजेस्ट करता, ना मैं कभी लिखता हूँ। आई अवॉइड लॉन्ग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, वो मुझे लगता है कि बोरिंग लगते हैं। मैं खुद भी टीचर हूँ, तो मैं जब देख लूँ कि पूरे सफ़े पे कोई पैराग्राफ ही नहीं है, लंबा टेक्स्ट है, तो मैं बोर हो जाता हूँ। और जो है ना, वो मेरा दिल करता है कि यार मैं पता नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं इसको पढूं। और ये एग्जामिनर्स की साइकी होती है, जब आपका ये वाला पैराग्राफ और ये वाला दोनों सफ़े जो हैं, उसके ऊपर कोई पैराग्राफ ही नहीं है और एक लंबी चीज़ चले जा रही है ना, तो उसको जो है ना, वो अजीब सी बोल्डम होती है, उसको नहीं पढ़ा जाता। तो आपने छोटे पैराग्राफ लिखने हैं, छोटे जुमलों में बात करनी होती है। आपने बॉडी पैराग्राफ कितने लिखे, 80 टू 120, 80 है 85 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, 110 120, लंबा ना हो। 1.5 2 सफ़ों के अगर आप लिखेंगे ना, मेरे ख्याल में वो लंबे हो जाते हैं। और वो बाजुकात ना, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ ऐसे दिए हैं, पास किए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मुझे छोटे पैराग्राफ ज़्यादा पसंद हैं, उसमें बात सही हो जाती है। आपने इसी तरीके से ये भी है 80 120 80 120 80 120, इस तरीके के आपने कोई 8 से 10 पैराग्राफ, ठीक है, आपने कोई 8 से 10 बॉडी पैराग्राफ्स आपने लिखने होंगे। एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, एक आपका हो गया कंक्लूजन का, और 8 पैराग्राफ फॉर एग्जांपल ये हो गए आपके। तो ये हो गए टोटल आपके 10 पैराग्राफ मिलके इजीली आपके 1400 के अराउंड ये हो जाएंगे। या आपने लिखे 10 बॉडी पैराग्राफ, 2 आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखे, आपके 1400 1500 के ये आराम से हो गए। या आपने 9 बॉडी पैराग्राफ लिखे और आपने 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपने 7 लिख दिए या आपने 11 लिख दिए, डिपेंड करता है। लेकिन आइडियली यही होता है कि इतना हो। बहुत ज्यादा आपने वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स भी आपने उसमें नहीं लेके जाने। कोई CSS का 3000 अल्फाज का 2500 लफ्जों का ऐसे तो है नहीं, ठीक है। 3 घंटे का तो ऐसे है नहीं, आपके पास टाइम भी बड़ा लिमिटेड होगा। आपने ऊपर बातें बहुत ज्यादा छेड़ दी, एंड में जाके आपके पास टाइम ही नहीं बचा। तो आपने उस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि आपने जरा जो मेन चीजें हैं बस वही करनी होती हैं। तो ये होगा आपका वैसे जनरल स्ट्रक्चर कि आपके पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए, पैराग्राफ में कितने कितने वर्ड्स होने चाहिए। ये चीज आपको समझ आई। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी सी डिटेल में आउटलाइन। आउटलाइन कैसे बनाते हैं? आपका ऐसे है ना, उसमें आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन जो होती है ना, वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिंपल, एक होती है थोड़ी सी डिटेल्ड। डिटेल से मुराद ये कि ऐसे तो आपने नहीं लिखना होता, उसमें आपने वो थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की आपकी आउटलाइन होती है, जो बता रही होती है कि इस पूरे ऐसे में क्या लिखा गया है। वो एक आउटलाइन से मुराद यहीं आपकी, उसको आप कह सकते हैं कि वो ब्लूप्रिंट होता है आपकी पूरे ऐसे का, स्ट्रक्चर होता है, नजर आ रहा होता है कि इसमें ये बात की गई है। मिसाल के तौर पे कोई मुझे ऐसे ऐसे कौन सा है,
कोई एक कर लें। मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं ऐसे, ये है एक ऐसे, ठीक है। आपने इसकी आउटलाइन कैसे बनाई? आपने सबसे पहले लिखना होगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की हेडिंग, और आगे आपने एक छोटा सा कोई एक इंट्रोडक्शन आपने या तो लिख दिया या ना लिखा, ये दोनों आपके पास चॉइसेस होगी। आपने इसको कर दिया 1, ठीक है, ये आपकी पहली मेन चीज हो गई, इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आपने क्या करना होता, इसी के नीचे आप लिख दें थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। थीसिस क्या होता है? थीसिस आपकी मेन बात होती है। मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरीके से कोई ले रहा हूँ, थीसिस हमने हेल्थ सेक्टर पे लिखना है ना, दिस ऐसे कुछ लोग डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, मैं लिख के बताता हूँ, जिसे कहते हैं ना अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई ये थीसिस स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ शायद जो पेपर चेक कर रहा है उसको भी ना पता चले कि इसने लिखी है या नहीं लिखी। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फॉलो किया जाता है। दिस ऐसे आर्ग्यूज दैट हेल्थ केयर सेक्टर केयर को साथ ही लिख देते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर is facing severe या सीरियस, स्वेयर एक उसमें आ जाता है, सीरियस चैलेंजेस कौन कौन से हैं कुछ मेंशन कर दें, सच एज स्टाफ शॉर्टेज, लैक ऑफ इक्विपमेंट, पुअर गवर्नेंस, पुअर मैनेजमेंट कर लें या गवर्नेंस पुअर, करप्शन एंड, इस तरीके से हो जाएगा। Therefore, there is need to implement अब ये मैंने वैसे खुद ही यहाँ बनाया है, ये थीसिस है, ये एक सिंगल सेंटेंस पर भी मुश्तमिल हो सकता है, ये 2 सेंटेंसेस के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। ऐसे नहीं लिख सकते ना आप, ये तो लिख सकेंगे ना कि हेल्थ केयर सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड
सेक्टर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये इस किस्म की आप एक ये भी आपका थीसिस हो सकता है। ठीक है, अब अगली एक कोई लाइन लिख दें जिसमें रेमेडीज़ की बात कर रहे हो कि रेमेडीज़ ये है कि सब्सटेंटिव एक्शंस शुड बी टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। ठीक है, इस किस्म की सिंपल भी आप लिख सकते हैं। ये है आपका थीसिस। ठीक है, ये है आपका थीसिस। अब इसको मैं ज़रा कर रहा हूँ, चलो इसको रेज नहीं करता। आगे क्या है, आगे आपने लिखना होगा बॉडी। ये आपका होगा दूसरा हिस्सा, बॉडी पैराग्राफ्स। इसमें क्या लिखने होंगे, इसमें आपने पॉइंट्स लिखने होंगे। बॉडी पैराग्राफ्स में आपने पॉइंट्स लिखने होंगे। कोई भी आपके जो मिसाल के तौर पे आपने चैलेंजेस पर 4 पॉइंट्स लिख दिए, आपने रेमेडीज पर 4 पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, ये आपने यहां मेंशन करने होंगे। बॉडी पैराग्राफ है ना, आप मैं यहां पहले लिख देता हूं नीचे कि यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं चैलेंजेस को, कि पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को चैलेंजेस क्या क्या दरपेश हैं। मिसाल के तौर पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, कोई बताए। लाइव तो है नहीं। चैलेंजेस हैं जी, आपने एक लिख दिया कि शॉर्टेज ऑफ, एक मेन वजह ये है। ठीक है, दूसरा डॉक्टर्स भी कम है, यहाँ नर्सेज भी कम है। लैक ऑफ इक्विपमेंट, वो हमने ऊपर बात की उसमें थीसिस में। पाकिस्तान में लाइफ सेविंग वो मशीनें नहीं हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो नहीं है पाकिस्तान में। बहुत से ऐसे वो हैं प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी मशीनें भी पाकिस्तान में नहीं है। इसके अलावा और पाकिस्तान में क्या मसला है, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। और एक क्या है, अब ये एक क्या बात नहीं है कि यहाँ कोई रिसर्च और डेवलपमेंट हेल्थ में होती नहीं है। भाई कोविड आया तो बरतानिया कोई वैक्सीन बनाएगा या चाइना कोई वैक्सीन बनाएगा, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये पूरी दुनिया में होनी चाहिए, पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ना होना, यहाँ अपनी लोकल मेडिसिन का ना बनाना, या बनाना तो पुअर क्वालिटी की बनाना, इट्स अ बिग इशू। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मिसाल के तौर पे आपने ये 4 चैलेंजेस गिनवा दिए। इसके अलावा और क्या है, आपने फिर कोई उसमें आपने गिनवा दी रेमेडीज। मिसाल के तौर पे रेमेडीज क्या हो सकती हैं, ये उसी में होगा, ये चैलेंजेस है ना यहाँ पे। ठीक है, ये आपने लिख दिया ए, ये आपने लिख दिया बी। इस तरीके से हेडिंग में वो बनाएंगे ना तो बड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ये आपने अब यहाँ पे बयान करनी है रेमेडीज। रेमेडीज क्या हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी गिनवा दें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये है, वी नीड टू इम्प्रूव जीडीपी स्पेंडिंग। जो स्टैंडर्ड है, जो यूएनओ कहती है, जो वर्ल्ड बैंक कहती है कि एटलीस्ट आप अपनी जीडीपी का 4 या 5% हेल्थ पे स्पेंड करेंगे। पाकिस्तान 1% भी नहीं करता। लेटेस्ट जो आपका बजट है उसमें शायद 1% हो, मैक्सिमम आप 1% कोट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ग्लोबल लेवल क्या चल रहा है, वो 5 चल रहा है, 4 चल रहा है। साउथ कोरिया कितना कर रहा है, वो 8 कर रहा है। पाकिस्तान कितना कर रहा है, मुश्किल से 1%। तो जब आप खर्च ही नहीं करेंगे जीडीपी पे, जब हॉस्पिटल्स ही नहीं बनेंगे, और जब ये मसाइल होंगे तो फिर कैसे वो रिफॉर्म्स होंगी। और कोई डॉक्टर होगा तो वो बाहर भाग जाएगा, नर्स होगी तो आपकी बरतानिया में वो चले जाती है, वहाँ पे वो पैसे ज़्यादा पे करते हैं। ठीक है, तो ये मसाइल हैं कि आपका जो वो है ना ब्रेन ड्रेन, वो ये इशू है। तो आपको जीडीपी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी हेल्थ केयर के ऊपर। इसी तरीके से आपने और क्या है, आपने थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट जो है और करप्शन जो है उसको तो ख़त्म करना होगा। पता है आपको,
हमें वर्ल्ड बैंक बहुत से पैसे देते हैं मुख्तलिफ बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान में न्यू नेटल फर्टिलिटीज़ जो होती हैं, जो बच्चे 5 दिनों के, 8 दिनों के, 1 महीने के, इसमें बहुत से बच्चे पाकिस्तान में, कोई 33% बच्चे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वो फौत हो जाते हैं, न्यू नेटल फर्टिलिटीज़ कहते हैं। इसी तरीके से जो प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें बहुत सी जो माएँ हैं वो फौत हो जाती हैं। इस पे पाकिस्तान को बहुत से पैसे मिलते हैं। जो पाकिस्तान में और भी इश्यूज़ हैं, मलेरिया है, डेंगू है, इसको हैंडल करने के लिए पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान को बहुत से पैसे मिलते रहे हैं और मिल रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। वो यार कौन सा इशू है पाकिस्तान में, नाइजीरिया में रह गया और पाकिस्तान में रह गया है पोलियो का, अफगानिस्तान में भी ख़त्म हो गया। तो ये पाकिस्तान की ये सिचुएशन है। वो जो पैसे मिलते हैं उनको आप कोई स्ट्रीमलाइन करें, उनको चैनलाइज करें, तो जब आप मिसमैनेजमेंट और करप्शन ख़त्म करेंगे तो वो भी कहीं किसी को फ़ायदा हो जाएगा। बहुत से हैं हॉस्पिटल्स जो वो बाहर के मुल्क वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़त्म हो जाती है सारी चीज़ें, वो मशीनें देती हैं, वो गायब हो जाती हैं। सिंध में एक ऐसा केस वो पड़ा। तो और क्या है, और भी हो सकती है। ये कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में आई हैं। आपने रेमेडीज़ लिखी, आपने फिर दूसरी चीज़ लिखी, फिर आपने तीसरी चीज़ लिखी, आपने चौथी चीज़ लिखी, और एंड पे आपने फिर लिखा एक कंक्लूजन। ये आपका हो गया, ऐसे समझिए ये थर्ड। ये आपकी बॉडी आपने इस तरीके से इसको डिवाइड करने हैं। और कंक्लूजन में आप कोई बात करेंगे। इन कंक्लूजन इट इज़ क्वाइट कॉन्स्पिक्वस दैट पाकिस्तान इज़ फेसिंग सीरियस हेल्थ केयर चैलेंजेस। इसमें और जो है ना कोई 2-3 पॉइंट्स हों, उनको आप रिवाइज करके वो इसमें लिख देंगे। तो ये है आपकी आउटलाइन। आउटलाइन आपकी जब बनी होगी, अच्छी बनी होगी, तो पता चल जाएगा कि अच्छा यार मसले ये वाकई हैं, सोल्यूशन वो ये दे रहा है, तो आपका ऐसे जो है वो अच्छा हो जाएगा। आपको थीसिस लिखने पे और इस सारे के बनाने पे ना अगर आधा घंटा भी लगता है लगा दें। ये टाइम बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है, लेकिन अगर इतना भी लगता है लगा दें, क्योंकि अगर आपने इसके बनाने में वैसे कम लगना चाहिए, 20 मिनट लगने चाहिए, आधा घंटा भी लग गया कोई नहीं है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, उसके बाद आपको ऐसे लिखने में अच्छा ये है, इसके ऊपर हेडिंग बना के आपने पूरा बॉडी पैराग्राफ लिख दिया, दोबारा बॉडी पैराग्राफ लिख दिया। जब फ्लो में आ जाते हैं तो हम बहुत जल्दी, बहुत तेज, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इसीलिए मेरा जो तरीका होता है वो यही है कि अच्छी सी आउटलाइन बनाएं और उस आउटलाइन को बस देखते जाएं और ऐसे जो है वो खींचते जाएं। 2 घंटे में आप बहुत अच्छा जो है वो ऐसे बना लेते हैं। ये मैंने सारा एक्सटेम्पोर किया है, ये मैंने कोई याद नहीं किए हुए। तो इससे बेहतर बॉडी पैराग्राफ्स भी बन सकते हैं, आउटलाइन भी बेहतर बन सकती है, ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और लाजमी नहीं है कि यही इशू हो, कुछ और भी हो सकते हैं। तो आपने इसको एक्सप्लोर खुद करना है। तो हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। अगर आप घर हैं, ठीक है, अगर आप घर हैं और आप इस एसए के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, यही तरीका है। आपको मैंने थीम्स लिखवा दिए हैं, टॉपिक्स लिखवा दिए हैं, आपको सोर्सेज बता दिए हैं कि आपने ऑनलाइन कहाँ से जाके कैसे डाटा लेना है। फुली चैट जीपीटी पे आपने रिलाई नहीं करना, वो गलत डाटा भी दे देती है, वो गलत, वो ऐसे ही बता देती है। मैंने 1-2 मरतबा इसको कहा ना कि यार इसका कोई रेफरेंस मुझे दो, एम ही बना दिया। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय रिजवान बोसन, ना हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नामी कोई ऐसी कोई किताब होगी, ना ऐसा कोई कैरेक्टर होगा, कोई राइटर होगा, वो बना के दे देती है। तो चैट जीपीटी इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स। आपको अच्छा कोई सोर्स जो है वो देखना है। इसलिए डॉन, दी न्यूज़, दी नेशन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, फ्राइडे टाइम्स, ये कुछ अच्छे अखबार हैं पाकिस्तान के, इनको देख के यहाँ पर जो मसला डिस्कस किया गया होगा उसका आपने डाटा लेना है। अच्छा, ये हो गया स्ट्रक्चर्स, ये हो गए, मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, एक और आखिर में चीज़, एक और अनाउंसमेंट। वी लाइक मैं रिजवान बोसन और अरसलान भाई, हम एक सेशन शुरू करने वाले हैं। हमारे पास जो बाकी 5-6-7 दिन हैं, उसका एक सेशन होगा जिसमें हम बच्चों को, उनके साथ एक इंटरेक्टिव किस्म की हमारी स्टडी होगी। उसमें हम डिटेल में चीज़ों को देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। मिसाल के तौर पे हम शायद आपको रिसर्च भी देंगे, डाटा भी देंगे कि ये जो कॉमन से टॉपिक्स होते हैं, इसके ऊपर अगर कोई आ गया तो आपके पास लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, बात करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो हम इन 8-10 मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम आपको हैंडआउट्स भी देंगे, आउटलाइंस भी देंगे, और हम इसमें आपको डिटेल में बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है, हुक कैसे लिखनी है, जो कि आपकी इंट्रोडक्शन की पहली लाइन होती है, रेलेवेंट होनी चाहिए, गलत होती है, सबसे पहली मारी यहीं खाते हैं। मिसाल के तौर पे टॉपिक होगा कि हेल्थ केयर सेक्टर इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, या चैलेंजेस एंड रेमेडीज, और वो कहेंगे पाकिस्तान इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन 21st सेंचुरी।
भाई मैनी प्रॉब्लम्स की बात आपसे किसने की है? आप ये बड़ा जेनेरिक किस्म का और बड़ा एक घिसा-पिटा सा और बड़ा ख़राब किस्म का हुक है। इस किस्म की चीज़ हम देखेंगे कि अच्छा हुक कैसे हम लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा जो रेलेवेंट हो, अच्छा हो, अपीलिंग हो, कैची हुक लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? खींचने वाला, वो जो मछली को पकड़ने के लिए वो जो हुक होता है ना, वो मछली को पकड़ लेता है। तो आपका जो पहला इंट्रोडक्शन हो रहा है ना एग्ज़ामिनर के साथ, वो हुक के थ्रू हो रहा है। आपकी पहली लाइन ऐसे घिटी-पिटी वो कहता है कि यार ये बंदा फारिग है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है। आप जो है ना, जो एग्ज़ामिनर का एक बायस होता है, वो पहले 2-4 लाइनों पे या इंट्रोडक्शन को देख के ना वो एक ओपिनियन बना लेता है और वो उस ओपिनियन से छुटकारा नहीं पा सकता। बस वो यही पता कहता है हाँ, हम समझ आ गई कि ये बस इतने नंबर लेने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो उस चीज़ को हमने देखना होता है कि वो थोड़ा-सा ना हमारा वो इमेज खराब ना हो। अच्छी 1-2 लाइनें होंगी ना, फिर वो उसको बाकी भी चीज़ें वो एक एवरेज सी भी चीज़ होगी तो शायद वो उसको अच्छी लगे। या दरमियान में जाके आपने चौथे पैराग्राफ में कोई बड़ा शानदार पैराग्राफ लिख दिया, अच्छी चीज़ें, शायद वो उतनी उसकी वैल्यू ना रहे। तो इसीलिए हुक अच्छा होता है। हुक कैसे लिखना है, बॉडी इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन लिख के भी शायद दिखाऊँ। बॉडी पैराग्राफ्स कैसे बनानी है, बॉडी पैराग्राफ मैंने ना 2022 में एक कोर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एकेडमिक राइटिंग का, एडवांस एकेडमिक राइटिंग। तो उसमें मुझे कुछ हैंडआउट्स भी मिले थे, तो उनमें एक ये चीज़ बहुत शानदार थी, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है, एक-एक लाइन उन्होंने लिख के दिखाई हुई थी और बहुत शानदार वो एक फाइल है मेरे पास। इसी किस्म के कुछ और सोर्सेज़ हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर में और इसमें क्लैरिटी में कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। और एक और चीज़ जो हमने एंड पे करनी है वो ये होगी कि हम थर्सडे को या इससे भी पहले आपसे कुछ एस्से लिखवाएँगे और उसको चेक करेंगे। शायद मैं उस तरीके से अगर कुछ बच्चे ज़्यादा हुए तो मैं मोस्ट लाइकली वो सारा लाइन बाय लाइन तो चेक ना कर सकूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पढ़ने के बाद बतौर उस्ताद मैं जो उससे एक आइडिया लूँगा कि यार ये बहुत बड़ी गलती है, ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है, इसको करने वाला पास नहीं होता, तो ये चीज़ ठीक कर लो, ये कर लो। वो तो लाज़मी करूँगा, इसके अलावा जितना अच्छा डिटेल से चेक हो सका, मैं आपको एक फीडबैक भी दूँगा। तो वो हमारी चीज़ है, वो सेशन है, उसके लिए आप जो है वो असलान साहब से राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस जॉब को कोशिश करें कि आपने सीरियसली एफर्ट करनी है, अच्छा करके लिखना है जितना आप लिख सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, स्क्रिप्टोफोबिक बने बगैर आपने लिखना है। और आगे जो है मेरी वही एडवाइस होगी, जहांगीर वर्ल्ड टाइम का मैगज़ीन आपके घर में लाज़मी आना चाहिए और डॉन न्यूज़ आपने पढ़नी है। ये आप करेंगे ना तो आप बहुत ईज़ी फ़ील करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।